Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. Hope all of you are doing well with your preparation. In this video, we'll discuss the daily topic-wise news analysis from two important newspapers, that is the Hindu and Indian Express. So let's get started. So these are the list of the topic that I'll be discussing with you. Today is 25th of August. So the first topic is misuse of DNA sampling and profiling data. This is an important privacy-related concern. Now the second topic is DRDO list for 108 system for Make in India initiatives. Now the fresh talk between the India and China has again started. So this is our third topic. The fourth topic is Galaxy discovery using the AstroSat. So this is again good news that is coming from the space sector. And the last topic is need for the physical council. So these are the five important topics that I'll be discussing in depth. And apart from this, we'll have some MCQs question and the explanation of yesterday questions. तो वीडियो के अंत तक बने रहे जहाँ के आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशन समझ पाएं. And a good news for all the students who are preparing for civil services this year. We are organizing an all India mock test. So this would be held on 30th of August. The timing would be from 11 a.m. And these are some of the best offer that student can avail. So the top 50 student would be getting free mains answer writing guidance, 50% discount on the mains, and there would be 100 answer of the mains that would be free of cost, would be evaluated for the student, right? So do check the description section. वीडियो के description link को check कर लें, वहाँ पे आपको इसकी ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी. Now coming to the first topic, that is misuse of DNA sampling and profiling data. This is there in the Hindu. और ये जो आर्टिकल है ये आपके प्रीलिम्स के लिए पीटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर योर जनरल स्टडीज पेपर 3, राइट? सो लेट्स सी व्हाट आर द डिटेल्स है. रिसेंटली अभी जो पार्लियामेंट्री की स्टैंडिंग कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उन्होंने एक ड्राफ्ट रिलीज किया, एक रिपोर्ट रिलीज किया है जहाँ पे दे हैव हाईलाइटेड द मिसयूज ऑफ DNA सैम्पलिंग एंड प्रोफाइलिंग ऑफ द सिटीजन. जो सिटीजन की जो प्रोफाइल सैम्पलिंग की जाती है DNA की, उसको लेकर के मिसयूज करने की बात कही है एंड दैट इट कैन बी फर्दर मिसयूज फॉर द कास्ट और कम्युनिटी बेस्ड प्रोफाइलिंग. So this is what a concern has been highlighted from the Parliamentary Standing Committee on Science and Technology. तो ये पूरी न्यूज़ है. तो हम आगे समझते हैं क्यों ऐसी बातें कही गई है, क्या क्या इसके रिपरकशन हो सकते हैं. So what is the bill all about? सबसे पहले आपके लिए समझना जरूरी है कि what is the intent of the bill and what are the provision that has been highlighted in the bill. So first, the bill allow the DNA sample and profiling of the citizen that are accused in the crime or reported missing. अगर कोई किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, कोई मिसिंग है, तो उनकी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उनको एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है. दिस इज द प्रोविजन विच इज़ देयर इन द बिल. नाउ बात करें जो DNA टेक्नोलॉजी यूज एंड एप्लीकेशंस रेगुलेशन एक्ट 2019, इट हैज़ बीन वर्किंग फॉर इंडिया लाइक पास्ट 15 ईयर्स इन द रो. इसकी पहल बहुत पहले से चल रही है बट दिस हैड कम इन 2019 इटसेल्फ. तो इसके बाद चीज़ें बहुत सारी बदलेगी बट जो प्राइवेसी के कंसर्न है उसको भी हम कभी नकार नहीं सकते हैं. नो, दिस इज अ डिफरेंट एंगल दैट हैज़ टू बी लुक इनटू. तो बात करें बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं दे हैव इनेक्टेड द सिमिलर लेजिस्लेशन. यूएस ने इस तरह का लॉ 1994 में ही लाया था बट स्टिल डाउन द लाइन 2019 में भी हमने बिल तो लाया है बट अगेन टॉकिंग अबाउट इट्स प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस एंड द रिपरकशन ऑफ द बिल इन द सोसाइटी हैज़ अ ह्यूज इम्पैक्ट. So we have to make it very balanced, very sustainable, that it do not impact privacy of any individual of this country. like किसी भी citizen को ये impact ना करे. Now आगे बढ़ते हुए what is the bill all about? तो बात करें किस तरह से ये चीज़ें काम करेंगी. तो जो DNA प्रोफाइल है वो एक इंडिविजुअल के कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशंस को लेती है, जैसे कि पेडिग्री एनालिसिस होती है. आप में से अगर कोई साइंस के स्टूडेंट होंगे तो दे मस्ट बी फैमिलियर अबाउट द पेडिग्री एनालिसिस, अपने क्लास 12th में पढ़ा भी होगा. स्किन कलर, बिहेवियर और इलनेस, इन सारे पैटर्न्स को एक कलेक्ट किया जाता है, इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है DNA प्रोफाइल के थ्रू एंड इट इज़ बीइंग हाईलाइटेड कि मिसयूज भी हो सकता है ये स्पेसिफिक किसी पर्पसेस के लिए, राइट? जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है दैट कैन बी यूज्ड इनकरेक्टली टू लिंक पर्टिकुलर कास्ट कम्युनिटी टू क्रिमिनल एक्टिविटीज. तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट कंसर्न है ना. तीसरी बात है द बिल पर्पसेस द स्टोर प्रोफाइल ऑफ द सस्पेक्ट्स अंडर ट्रायल, विक्टिम्स एंड देयर रिलेटिव फॉर द फ्यूचर इन्वेस्टिगेशंस. तो इन पर्पसेस जो बिल की जो मेन एम है वो ये भी है कि जो DNA प्रोफाइल रखा जाए वो कोई सस्पेक्ट्स हैं, कोई अंडर ट्रायल है, कोई कन्विक्ट्स हैं, कोई विक्टिम्स हैं,
उनके फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए जो पुलिस है या जो हमारी एजेंसी है, एनफोर्समेंट एजेंसी है, उनको कुछ मदद मिल पाए. Now, through those, this will help in identifying the repeated offenders. जो ऐसे लोग हैं जो बार बार एक ही तरह के क्राइम रिपीट कर रहे हैं, तो उस तरह की अगर डीएनए प्रोफाइल होगी तो इट वुड बी इजी फॉर द गवर्नमेंट, इट वुड बी इजी फॉर द पुलिस टू आइडेंटिफाई द ऑफेंडर, एंड देयर इज नो लीगल एंड मोरल जस्टिफिकेशन ऑफ द डेटाबेस विथ हाई पोटेंशियल ऑफ द मिसयूज. तो सबसे बड़ी बात जो कमिटी ने, जो पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उन्होंने जो हाईलाइट किया है वाज द मिसयूज ऑफ द डेटा, एंड देयर आर द वेरिएबल नंबर ऑफ मिसयूजेस दैट कैन बी अकर्ड, राइट. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है. Now the other topic that is again from the Hindu, DRDO list of 108 system towards the Make in India initiative. आत्मनिर्भर बनने की जो बात की गई है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, उसके तरफ से एक कोशिश, एक पहल है जो कि DRDO ने इनिशिएट किया है. So this is important for your prelims examination, and talking about the mains, it is important for the general studies paper 3. तो जो इंडियन इंडस्ट्री है and the Defense Research and Development Organization, that is DRDO, they have identified 108 military subsystem and components. ऐसे 108 सबसिस्टम और कंपोनेंट्स के लिस्ट तैयार किए गए हैं. अगर आपने PIB वेबसाइट अगर आपने देखा होगा तो आपको ये लिस्ट मिल जाएगी. तो लिस्ट आपको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, बट यू हैव टू नो कि कुछ 108 सब सिस्टम और कंपोनेंट्स हैं जिनको अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्पोर्ट नहीं करेगी. आई क्लैरिफाई कि अब वो उनको इम्पोर्ट नहीं करेगी. नाउ दे वुड बी देयर इन द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव. जो हमारा मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है, उनके थ्रू इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जाएगा. नाउ DOD, जो DRDO है, जो हमारे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो प्रोवाइड करेगी सपोर्ट फॉर टू द इंडस्ट्रीज इन डिज़ाइन, डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग. तो DRDO का मेन काम होगा डिज़ाइन को बनाना, चीज़ों को डेवलप करना और बाद में उसको टेस्ट करना फॉर द रिक्वायरमेंट बेसिस. और जो हमारी DRDO है, दैट विल ऑल्सो प्रोवाइड द सपोर्ट फॉर दिस ऑल द प्रोसेस. जितनी भी प्रोसेस जो होंगी, जो पूरा बेसिकली जो इंसेप्शंस होगा फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू एवरीथिंग, सो द एंटायर सपोर्ट वुड बी प्रोवाइडेड फ्रॉम द DRDO. नाउ क्या प्लान ऑफ एक्शंस रखे गए हैं DRDO की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से? तो जो डेवलपमेंट है सब सिस्टम और कंपोनेंट्स के, दैट विल बी डन इन द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स. अभी प्लान बनाए गए हैं, आइटम को आइडेंटिफाई किया गया है जिसमें 108 सब सिस्टम को लिस्ट की गई है. ऑलरेडी दिस इज देयर इन द पब्लिक डोमेन, आप पढ़ सकते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं. एंड DRDO हैज़ बीन पार्टनरिंग विद द अदर इंडस्ट्री, जो लीडिंग इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि एडवांस टावर आर्टरी गन सिस्टम है जिसको ATA-GS भी कहते हैं, एंड पिनाका रॉकेट्स लॉन्चर्स. सो दीज आर वन ऑफ द बेस्ट लॉन्चर्स इन द वर्ल्ड. तो पिनाका रॉकेट्स जो लॉन्चर्स हैं, उनको भी DRDO अब सेल्फ मैन्युफैक्चर करेगी. एंड एट द प्रेजेंट जो DRDO दैट कंसिस्ट ऑफ 1800 माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, हमारे जितने भी जो बड़े छोटे लघु उद्योग हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, वो विथ अलॉन्ग विद द डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिसको DPSUs भी कहते हैं, और जो हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है जहाँ पे बेसिकली जितने भी कारतूस है, बम्स है, वो मैन्युफैक्चर्स होते हैं. तो ये तीनों मिलके लार्ज स्केल में मास प्रोडक्शन करेगी, राइट. सो दिस इज द ब्रॉडली द प्लान ऑफ एक्शन दैट DRDO हैज टेकन. नाउ नेगेटिव इम्पोर्ट लिस्ट की बात की गई कि किस तरह से जो इम्पोर्ट है उसको कम करना है. तो एक नेगेटिव इम्पोर्ट लिस्ट बनाई गई है कि क्या क्या चीज़ सरकार ऐसी कर सकती है जिसमें इम्पोर्ट को कम किया जा सकता है. सो फर्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया, जो 101 आइटम है उसको बेसिकली ये 108 है, जो 108 आइटम्स हैं उनको नेगेटिव लिस्ट में रखा गया है. और ये जो आइटम्स होंगे दैट वुड बी अगेन दिस वुड बी डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड. जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स है, जो आत्मनिर्भर भारत है, उसके थ्रू सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर करने की बात की गई है. इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को ध्यान दी जाएगी, जैसे कि जो नेगेटिव इम्पोर्ट लिस्ट है उसको बरकरार रखा जाए, जितना कम से कम इम्पोर्ट है वो किया जा सके. एक सेपरेट बजटरी एलोकेशन की जाएगी फॉर द डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट. जो हमारी डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट होगी डिफेंस को लेकर के, उस पर बल दिया जाएगा, उस पर जोर दिया जाएगा. दैट वुड बी डोमिनेटेड बाय द कंट्री इटसेल्फ. और इसमें मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, दे हैव टेकन अ नोट ऑफ दिस एंड कंसिक्वेंटली व्हाट दे विल बी डूइंग, सब्सिक्वेंटली दे विल बी फॉलोइंग इट अप. और आने वाले 1 से 2 साल में जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है, जो आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव है, उसको एग्जीक्यूशन का भी प्लान है. और अगर कुछ और इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स की तरफ बात करूं, तो जो FDI की कैपिंग थी ऑटोमेटिक रूट में, वो डिफेंस में 49% थी. नाउ दैट हैज़ बीन फर्दर इंक्रीज टू 74%.
सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप मेंस में इस तरह के पॉइंट लिख रहे हैं, डिफेंस में आत्मनिर्भर का क्या रोल है या गवर्नमेंट ने क्या क्या डिसीजन लिए हैं, तो आपको ये लिखना मैंडेटरी है कि दैट ऑटोमेटिक रूट में 49% से बढ़ा करके 74% कर दिया गया है। Now the other news that is again from the Hindu. We are today the most of the news are there from the Hindu itself. The fresh talks between the India and China after the 5 level talks that has failure. उसके बाद बहुत सारी concrete actions लेने की कोशिश की जा रही है, and this is important for your general studies paper 2 in the mains examination. और कुछ important terms जो हैं वो आपके prelims examination के लिए भी important है। तो इंडिया और चाइना they are preparing for the military round of talks आफ्टर टू रिजॉल्व द टेंशन। जो भी टेंशन बरकरार है, एक लंबे समय से करीबन 2 महीने से ये टेंशन चल रही है। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स वुड बी वर्किंग। स्टैंड ऑफ जो है, जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल में है इन द ईस्टर्न लद्दाख रीजन, दैट हैज एंटर ऑलमोस्ट 17th वीक। दूसरी बात, मैं आपको थोड़ा सा दीपसैंग प्लेन्स के बारे में बता दूं, ये काफ़ी न्यूज़ में है। दिस इज द मैप विच विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई। दिस इज द गैल्वन वैली एंड दिस इज द Deepsang Plains. तो Deepsang Plains जो है that are located in the actual line of control that separates India and Chinese controlled region. So this point is very important. It separates the India and Chinese controlled region. And the Chinese army have occupied most of the plain in the 1962. So most of the region around this were already occupied by the China in 1962 Indo-China war. Now India and the West, India control the western portion of this plain. जो है इसके western portion है, this was the reason कि इंडिया के कंट्रोल में है. This is among the Indian control. Whereas the eastern part of the Askai Chin, जो Askai Chin वाली जो region है यहाँ पे, that has been controlled by the China and China claim that वो उनके territory में है. तो दीपसांग प्लेन्स जो हैं उस पर भी काफ़ी dispute है और जो अब जो बातें होगी वो इस पर dominate करेगी. So this is again very important. Prelims में direct सवाल आपसे यहाँ पे पूछे जा सकते हैं. Now what is there on the agenda और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो बात होगी। तो दीपसैंग प्लान के जैसे मैंने आपको बारे में बताया, दोनों साइड इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा they are more serious about this Deepsang Plains and both side have agreed कि जो military talks होगी, जो diplomatic level talks होगी, basically secretary level पे talks already last week हो चुकी है। तो अब जो working mechanism है that is there on the working mechanism for the consultation and coordination, जिसको WMCC भी कहते हैं। तो इंडिया चाइना की जो बॉर्डर अफेयर्स हैं उन पे जोर देते हुए एक कुछ कंक्लूजिव, एक सस्टेनेबल रोल पे आया जाएगा, एक कंक्लूजन निकाला जाएगा कि क्या स्टैंड ऑफ होनी चाहिए और किस तरह से आगे रोड मैप बनेगी। सो दिस मैकेनिज्म, दिस कोऑर्डिनेशन एंड कंसल्टेशन विल टेक केयर ऑफ इट। तो बात करें डिफेंस मिनिस्ट्री की, तो डिफेंस मिनिस्टर ने क्लियरली मीटिंग की थी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और जो 3 आर्मी चीफ्स हैं उनके साथ, और ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि वी डू नॉट वांट एनी टेंशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, वी वांट अ पीस और पीस शुड बी देयर favoring India. It should be neither favoring basically China nor it would be favoring India, but it should be mutual and neutral. So that is there in the agenda. 5 round of talks हो चुकी हैं अभी तक में। बेसिकली मैं आपको जो स्टार्टिंग में बताया हूँ, जो कमांडर लेवल की जो टॉक थी, हाईएस्ट मिलिट्री लेवल की टॉक है, वो 5 बार हो चुकी है, बट स्टिल उसके तरफ से कोई कंक्लूजन हमें नहीं मिला, कोई कंक्रीट एक्शंस नहीं मिले। दिस इज कंटिन्यूइंग फ्रॉम मे इटसेल्फ एंड देयर इज अ लिटिल प्रोग्रेस ऑन द ग्राउंड टू रिस्टोर द स्टेटस को। सो लेट्स सी अभी रिसेंट में जो एग्जीक्यूटिव जो मिनिस्टर लेवल पे बात हो रही है उस पर क्या रिजल्ट्स आती है, एंड वी आर वेरी होपफुल कि कुछ कंक्रीट एक्शन निकल के आएगा। Now the other topic, that is galaxy discovery using the astrosat. This is there from the Indian Express. बेसिकली जो एस्ट्रोसैट है उसके बारे में आपने प्रीलिम्स में भी पढ़ा होगा, नई डिस्कवरी गैलेक्सीज की गई है एस्ट्रोसैट को लेकर के। सो दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। प्रीलिम्स में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस में आपके जनरल स्टडीज़ पेपर 3 में कई बार शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बट फॉर प्रीलिम्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Now the team of scientists from the Indian University and the Center Astronomy of Physics, that is AUCAA, उन्होंने अनाउंस किया है कि एक डिस्कवरी की गई है गैलेक्सी की यूजिंग द इंडियन एस्ट्रोसैट, राइट। तो एस्ट्रोसैट ने डिस्कवर किया है बहुत सारे गैलेक्सीज को यूजिंग द एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट राइट, जो अल्ट्रा वायलेट लाइट्स है जो कि एस्ट्रोसैट की स्पेशल कैपेबिलिटीज है, कैपेसिटी है, उसको यूज करते हुए डिस्कवर किया गया। एंड दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्लू दैट द डार्क एजेस ऑफ द यूनिवर्स एंडेड। जो पुरानी डार्क एजेस थी वो किस तरह से खत्म हुई है उसके बारे में कुछ बहुत अहम जानकारियां हमें इसके थ्रू मिल सकती हैं, राइट।
तो जो एस्ट्रोनॉमर्स थे दे आर लुकिंग इनटू द रीऑर्गेनाइज्ड ऑफ द अर्ली यूनिवर्स, किस तरह से जो पुराने यूनिवर्स हैं उनको रीऑर्गेनाइज्ड किया जा सकता है। एंड यूजुअली दे हैव बीन द फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स स्पेशली फॉर द न्यूबॉर्न एंड स्मॉल गैलेक्सीज। तो जो हमारी एस्ट्रोसैट है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन साबित हो सकती है इंडिया के स्पेस सेक्टर के लिए, राइट, एस्ट्रोनॉमी फिजिक्स के लिए। नाउ एस्ट्रोसैट की अगर बात करें तो दिस इज इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी एंड इट हैज अ यूनिक फीचर दैट इट एनेबल द साइमल्टेनियस मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेटरी के थ्रू यूज की जाती है। जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है सिंगल सैटेलाइट में एम्बेडेड है, उसके थ्रू ये सारी एक्शंस एग्जीक्यूट करती है। नाउ जो एस्ट्रोसैट ऑब्जर्वर है दैट इज द यूनिवर्सल इन द ऑप्टिकल, अल्ट्रावायलेट एंड लो इन द हाई एफिशिएंसी एक्सरेज। तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, जो एस्ट्रोसैट है वो ऑब्जर्व करती है यूनिवर्स की ऑप्टिकल, अल्ट्रावायलेट, लो एंड हाई एनर्जी एक्सरेज। तो एक्सरेज में मेन फोकस होता है इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वेयर द साइंटिफिक सैटेलाइट्स कैपेबल ऑफ ऑब्जर्विंग द नैरो रेंज ऑफ द वेवलेंथ बैंड्स, राइट। तो जो साइंटिफिक सैटेलाइट है वो इतने अंदर नहीं आ सकती है जितनी हाई कैपेसिटी वेवलेंथ एस्ट्रोसैट की है। मैं आपको एक इमेज दिखाऊंगा, आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। सो दिस इज इंडिया फर्स्ट मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी। ये लाइन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्पेस ऑब्जर्वेटरी की बात करें तो 5 इंपॉर्टेंट टेलीस्कोप्स हैं इस एस्ट्रोसैट में। फर्स्ट इज कॉल्ड लार्ज एरिया स्पेस प्रोपोर्शनल काउंटर, दूसरा दैट इज सॉफ्ट एक्स टेलीस्कोप, the third is cadmium zinc telluride image scanning sky monitor and ultra wide imaging telescope। ये 5 इंपॉर्टेंट इसके कंपोनेंट्स हैं, इनके टेलीस्कोप्स हैं, जिसके वजह से जो वेवलेंथ है माइक्रो वेवलेंथ भी इसको आराम से ऑब्जर्व की जा सकती है। एंड दिस इज द माइलस्टोन फॉर इंडिया स्पेस ऑब्जर्वेटरी, राइट। तो ये आप जरूर ध्यान रखें, दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। कई बार इससे एक भी सवाल आपसे प्रीलिम्स में पूछ लिए जा सकते हैं। Now coming to the last topic, that is need for the physical council. This is there in the Hindu. This is written by M. Govinda Rao. M. Govinda Rao is the member of the 14th Finance Commission, and he talks about why there is a need of the physical council for the country like India where GST has already been implemented. कुछ loopholes भी रहे हैं GST के, तो उस ध्यान से आपके जनरल स्टडीज के पेपर 3 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फैक्चुअल की अगर बात करूँ तो प्रीलिम्स में GST काउंसिल के बारे में कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं। तो जो फिजिकल सिचुएशन है इंडिया की, दैट हैज़ बीन अगेन इन द ह्यूज डिस्ट्रेस। पेंडेमिक के बाद बहुत ज़्यादा चीज़ें वर्सन हुई है, और जो फिजिकल डेफिसिट है गवर्नमेंट की, अगर एस्टिमेट बताऊं मैं आपको कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की तरफ से, बेसिकली कंप्ट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स करती है यहाँ पे, नॉट द कैग। सो दिस इज CGA, कंप्ट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। उन्होंने एस्टिमेट किया है कि 4.6% के आसपास बेसिकली ग्रोथ होगी, एंड दिस इज 0.8% हायर देन द रिवाइज्ड एस्टिमेट, क्योंकि अभी इकोनॉमी थोड़ी एक पेस पकड़ी है, जो ग्रीन शूट्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। सो लेट्स सी हाउ इट वुड बी परफॉर्मिंग। करंट ईयर में अगर बात करें, दिस इज फॉर द 1920, राइट। करंट ईयर की अगर बात करूं तो जो एस्टिमेशन है दैट इज क्लोज टू 7% ऑफ द GDP अगेंस्ट द 3.5% ऑफ द एस्टिमेटेड बजट ड्यू टू शार्प डिक्लाइन इन द रेवेन्यूज। और मैं आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं, एज एन एस्पायरेंट्स यू शुड नो, बजट में ऑलरेडी इस बार में जो प्रोजेक्शंस थी वो काफ़ी कम ही की गई थी कोरोना से पहले भी। तो सरकार के लिए एक ये बहुत ही देखने वाली बात होगी कि आपने ऑलरेडी प्रोजेक्शंस कम किए हैं, फिर भी कोरोना के बाद और कम हो रहे हैं, तो यू हैव टू मेंटेन इट। सरकार इस चीज़ में छुप नहीं सकती है, दे कैन नॉट हाइड बिहाइंड दिस, राइट। तो ये एक बात बहुत ही ध्यान देने वाली है। उसके बाद जो कंसोलिडेटेड डेफिसिट है फॉर द यूनियन एंड द स्टेट could be as high as 12% GDP, and the overall debt could be 85%. This has to be minded, 85%. Now फिजिकल काउंसिल की अगर बात करें तो फिजिकल काउंसिल एक परमानेंट एजेंसी है जो कि मैंडेट करती है एक इंडिपेंडेंट असेसमेंट हो गवर्नमेंट की फिजिकल प्लान की, किस तरह के प्रोजेक्शंस है, क्या पैरामीटर्स अप्लाई की जा रही है मैक्रो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी को लेकर के, उस पर इनका जोर होता है। फिजिकल काउंसिल जो है अकॉर्डिंग टू द जो हमारी IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उनके मुताबिक 50 ऐसे कंट्री है वर्ल्ड वाइड जिन्होंने फिजिकल काउंसिल स्टैब्लिश किए हैं अलग अलग लेवल पे, राइट। और जो फिजिकल काउंसिल है दैट इज सेट टू बी द सॉल्यूशन फॉर द फिजिकल इनसफिशिएंसी, बिकॉज एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट असेसमेंट होनी बहुत ज़रूरी है सरकार के फिजिकल स्टैंसेस की, फिजिकल पॉलिसीज, फिजिकल प्लान्स की, राइट। सो दिस इज
the fiscal council, the rationale behind fiscal council would be. Now मैंडेट की अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू द FRBM फिजिकल रेगुलेटरी बजटरी मैनेजमेंट एक्ट जो है, उन्होंने कहा कि जो फिजिकल काउंसिल है दैट वुड बी मैंडेटेड टू इंक्लूड दीज नंबर ऑफ थिंग. द फर्स्ट वुड बी प्रोवाइडिंग द इंडिपेंडेंट असेसमेंट, जो मैंने आपको पहले बताया. दूसरा वुड बी प्रोवाइडिंग द मल्टी ईयर फिजिकल प्रोजेक्शंस, क्या फिजिकल प्रोजेक्शंस हैं उनके बारे में. तीसरा प्रिपेयरिंग द फिजिकल सस्टेनेबल एनालिसिस. The fourth would be recommending the sustainable change on the fiscal strategy to ensure कि किस तरह की जो financial assessment है annually उनके क्या steps लिए जा रहे हैं, क्या चीज़ें improve की जा सकती है और कैसे quality fiscal data को भी हम improve कर सकते हैं, right? And producing the annual fiscal strategy report that to be released publicly. और ये सारी चीज़ों को पब्लिक डोमेन में भी रखना काफ़ी ज़रूरी है. एक्सपर्ट्स ओपिनियन के लिए, पब्लिक ओपिनियन के लिए भी ये सारी चीज़ें रहेगी. तो ये फिजिकल काउंसिल की मैंडेट भी है, राइट. कंक्लूजन की अगर बात करें, बेसिकली इसमें एक बहुत अच्छी बात की गई है कि जो कंक्लूजन इस तरह से है, जो फिजिकल काउंसिल है वो एक सिल्वर बुलेट तो नहीं हो सकती है, बट दिस इज एन इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन दैट इज नीडेड फॉर द कॉम्पिटेंट रूल बेस्ड फिजिकल पॉलिसी. तो आपसे जो मेंस में सवाल पूछे जाएंगे वो डायरेक्ट इस पर भी स्टेटमेंट पूछे जा सकते हैं, डायरेक्टली इससे पूछे जा सकते हैं कि कंसिडर हाउ द फिजिकल काउंसिल इज नॉट अ सिल्वर बुलेट बट इज एन इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन फॉर द कॉम्पिटेंट रूल बेस्ड पॉलिसी कमेंट. तो डायरेक्ट सवाल स्टेटमेंट से भी उठाए जा सकते हैं. तो आप इस तरह से अपने आंसर्स जरूर प्रिपेयर कर ले सो दैट यू हैव आंसर्स बिफोर हैंड रेडी यू गो टू द मेंस एग्जामिनेशन. ना बढ़ते हैं अपने आंसर्स की तरफ. जो कल के सवाल थे उसके मैं कुछ आंसर्स आपको बताऊंगा. So the first, the correct option is C, that both of the statement are correct, that the president can resign from his office anytime by addressing the resignation letter to the Rajya Sabha and vice president. And the second statement, that is the president can hold office beyond the term of 5 years until his successor assume the charges. तो ये दोनों statement यहाँ पे correct है. Now the second statement here, B is correct, that cyclonic rainfall is committed in the mid latitude, not in the equatorial region. तो ये बिल्कुल ध्यान दें. एनसीईआरटी से ये सारी एक्सप्लेनेशन ली गई है. साइक्लोनिक रेनफॉल अगर इन द विंड ब्लो फ्रॉम ऑल साइड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द लो प्रेशर हैव अ स्पाइरल ग्रेट स्प्रेड दैट काउज द विलिंग एंड द एयर टू स्ट्राइब अप, राइट. तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है फ्रॉम द एनसीईआरटी एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज बी. नाउ लेट्स मूव टू द टुडेज एमसीक्यूज क्वेश्चंस. सो द फर्स्ट कमिंग फ्रॉम द मॉडर्न इंडिया, you have to consider two separate statements, that is the Brahma Samaj pioneered the cause of widow remarriage, and the second is Pandit Ishwar Chand Vidyasagar proactively participated in it. So if you have read NCERT, it would be a cakewalk for you. So you have to tell the correct option, that is A, B, C or D. So do write your answer in the comment section down below and participate more and more, because this would be helpful for you, right? It is ultimately for you as parents so that you get more security and confidence while practice the questions. Now the second question coming from the culture, which of the following is the important contribution of prehistoric painting? It helps us to understand the human foods, habits, daily activities. And the second is prehistoric period provide information about the evolution of human civilization. So a very generalized question. It would be very easy for you to answer this. So do take a note, write your answer in the comments down below, A, B, C, D, whatever you feel is the correct. You can let us know in the comment section, right? And participate more so that it helps you a lot. And those of you who are new to our channel, do not forget to subscribe Apti Plus Academy for Civil Services on YouTube, and do not forget to hit the like button on this video. And if you have any other concern, do let us know. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Stay home, stay safe. Thank you so much.